Yes, dear students, let us start with our lecture number 5 for Maths 1. In the last lecture, we have gone for some problems like this. I think we are done with example. Solved example number 5 is done. This one, I think. We can check it. And then, obviously, we have verified here De Morgan's law. Both the De Morgan's laws are verified, and now we can go for our next sum, that is example number 6. Okay, where we can see here P is equal to set of elements x such that x square plus 14x plus 40 is equal to 0, and Q is a set of elements x such that x square minus 5x plus 6 equal to 0. R is one more set. R is one more set in which we have got elements x such that x square plus 17x minus 60 equal to 0. And then what is the question that they have asked? Universal set is given already here as minus 20, minus 10, minus 4, 2, 3, 4. Now what we want to do here? What is the question here asked then? The question asked here is, we want to find P union Q, Q intersection R, P union Q intersection R, and P intersection Q union R. These are the 4 terms we need to find. These are the 4 sets we need to find. Okay? Now, when the question is given here, or the sets are given over here in such a set builder form. We repeat, what is meant by set builder form? They have given the formula or the rule in which we are going to have all the elements lying in that set. They are going to follow that particular property or the expression. Now here, expression for the set P is set of elements x such that x square plus 14x plus 60 equal to 0. This expression or this quadratic equation is getting satisfied, or in other language we need to find the factors of the expressions, that is the quadratic equations given over here. Clearly, being quadratic equation, we will be having 2 elements for each of the sets P, Q and R over here. Okay, so let us make an attempt to find the actual elements of set PQR. How we can go for it? Yeah. Now see here, they have given here P as set of elements x having x square plus 14x plus 40 equal to 0. Now here they have not given how we could get this minus 10 and minus 4 as the elements of set P. But we can definitely solve or try to solve it here in rough, that we want to find the elements which will be satisfying the elements x square plus 14x plus 40 equal to 0. Now this clearly gives us, we know that this is the middle or the coefficient of the variable x is always a sum of roots. Do you know this? We will write it over here. Wait. Whenever it is given like this, it is sum of roots into x plus into product of roots and equal to 0. Okay? So we need to find 2 numbers of which 14 is the sum and 40 is the product. So now the things are very clear. We will be splitting it as 10x plus 4x so that the sum comes as 10 and 4. हाँ, I think I was right here. यहाँ पे माइनस ही चाहिए. ठीक है, sum of roots and product of roots, and now we can write it here in that 10 into 4. So easily we could get it here something like x into bracket x plus 10
plus 4 into brackets x plus 10 equal to 0, which will be giving us, I'll write it here, x plus 10 into x plus 4 equal to 0, which gives us x equal to minus 10 or x equal to minus 4, and hence we are getting these elements as a set P. ठीक है? I hope there is no doubt, students. In the same manner, we have to get the values for the elements of set Q and set R. ठीक है? Now what is the expression they have given for set Q? For set Q, I think they have given the expression x square plus 5x, no, x square minus 5x plus 6 is equal to 0 is the expression for Q. So naturally we can split it. Naturally we can split this expression as x square minus 3x minus 2x. How to factorize a quadratic equation is a prerequisite of getting such elements given in a set builder form. So clearly we need to go for understanding with this much, and it is going to be 3 into 2. So just say plus 6, right here x minus 3 minus 2 x minus 3. So we get 2 brackets over here, and hence if we equate every bracket to 0, we get x equal to 3 or x equal to 2. Right? So we could now get the values for elements of set Q here. In the same manner, try to go for elements of set R. It's going to be, if this message is written, या अगर आपका लिख के हो चुका है, तो I'll change the page. By that time, we can try to get the elements of set R. Done. So next page. Verify if you are getting the elements of set R as, let us check here, minus 20 plus 3, because फिर उसका प्रोडक्ट आएगा minus 60 और उसका एडिशन आएगा minus 17. Fine. So we could get P as, wait, I'll change the, So now we could get P as minus 10 minus 4, Q as 3 2, and R as minus 20 and 3. Now we will go to what is actually the question what is been asked over here. We are asked to find P union Q. अगर P भी यहाँ पे है, Q भी यहाँ पे है, तो naturally finding intersection and union is not a big deal for us now. But how we can go wrong, or how we can make mistakes over here, is that in such cases we can make a mistake by going wrong in getting the values of such elements of set itself. ठीक है? So if you are not so comfortable, if you are not so confident about solving some quadratic equation, then for sure you can make a mistake over here. So my advice is, before we go for standard 11 या फिर standard 12 का maths, see to it that your earlier standards mathematics basics are very much clear.
this is going to happen. So, or the similar experience you'll be having when you'll go for your some mathematical subjects आफ्टर स्टैंडर्ड 11th और स्टैंडर्ड 12. मैंने बहुत बार ये लेक्चर्स में बोला है कि स्टैंडर्ड 11 एंड स्टैंडर्ड 12 दे आर गोइंग टू फॉर्म द बेसिक ऑफ समथिंग यू आर गोइंग टू हैव इन फ्यूचर. आइदर यू गो फॉर CA फाउंडेशन और एनी अदर ग्रेजुएशन, एनी अदर PG एंड ऑल. ठीक है. सो यहाँ पे कुछ भी बेसिक नहीं करना है, बेसिक मिस नहीं करना है. जैसे हमने यहाँ पे देखा अभी कि अरे हमको सेट क्या है पता है, यूनियन ऑफ सेट पता है, इंटरसेक्शन भी पता है, लेकिन इफ यू आर नॉट सो कंफर्टेबल फाइंडिंग आउट द एलिमेंट्स ऑफ सेट P, Q and R by solving the quadratic equations which we have seen in our स्कूल मैथ्स, देन अगर वो नहीं आप कर पाते हैं अच्छे से तो नेचुरली आप यहाँ पे कहीं पे तो मिस्टेक कर सकते हो इन फाइंडिंग आउट से एलिमेंट्स ऑफ P, Q and R. अगर यही गलत आता है तो क्लियरली आप कितना भी यूनियन का और इंटरसेक्शन का या फिर जो भी कंसेप्ट है अभी हम जो अभी सीख रहे हैं स्टैंडर्ड 11 में, आप कितना भी वहाँ पे ध्यान दे दो आप वहाँ पे मिस्टेक कर सकते हो अगर यही बेसिक अगर आपके क्लियर नहीं है. तो कुछ भी अगर क्लियर नहीं है अभी तक, आइडेंटिफाई योर वीक पॉइंट्स जहाँ पे आपको एम्फोसिस देना है एंड सी टू इट दैट यू प्रिपेयर इट. अगर कुछ भी हेल्प लगती है तो आस्क मी. ठीक है. तो क्लियरली नाउ वी आर देयर विद द एलिमेंट्स ऑफ P, Q and R. एंड नाउ लेट अस फोकस. क्वेश्चन क्या पूछा है? X is already given, universal set X is already given in the question directly. ठीक है. तो P union Q, P का और Q का अगर यूनियन है तो they don't have anything in common. So 4 distinct elements are going to be there, -10, -4, 3, 2. ठीक है. यूनियन क्या होता है? आई रिपीट, यूनियन क्या होता है? हमने बहुत बार ये बोला है, यूनियन इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन बोथ द सेट्स अंडर कंसिडरेशन. ठीक है. या फिर हम उसको बोलते हैं कि कॉमन प्लस अनकॉमन एलिमेंट्स इन वेरी मच नॉन मैथमेटिकल लैंग्वेज. और अगर हमको मैथमेटिकल लैंग्वेज ही याद रखना है तो क्या होता है यूनियन ऑफ टू सेट्स? यूनियन ऑफ टू सेट्स इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन आइदर सेट 1 और सेट 2. उसको A भी आ सकता है, P, Q, R जो भी अंदर कंसिडरेशन उसका नाम जो भी हो वो हम वहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं. ठीक है. नाउ सेकंड क्वेश्चन इज Q इंटरसेक्शन R. इंटरसेक्शन क्या होता है? मैथमेटिकल लैंग्वेज में इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज अ सेट ऑफ एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन सेट 1 एंड सेट 2. ठीक है. सेट 1 में भी है और सेट 2 में भी है. ऐसे जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो आएंगे इंटरसेक्शन में. और यहाँ पे हम नॉन मैथमेटिकल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? दोनों सेट में जो भी कॉमन एलिमेंट्स है वो वहाँ पे हम लिखते हैं. ठीक है. तो अभी देखो Q में है 3, 2 और R में है कहाँ गया R में है -23. ठीक है. तो इसलिए दोनों में कॉमन क्या है? सिर्फ 3 है. तो Q इंटरसेक्शन आ गया ओनली 3, दैट इज ओनली वन एलिमेंट. अब लेट अस अप्लाई आवर नॉलेज ओवर हियर ऑफ बेसिक नॉलेज ऑफ सेट ओवर हियर. अगर किसी भी एलिमेंट किसी भी सेट में एक ही एलिमेंट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल दैट एज सिंगलटन सेट. ठीक है. अगर किसी भी सेट में अगर एक ही एलिमेंट होता है तो उसको हम बोलते हैं सिंगलटन सेट. अगर एक भी एलिमेंट वहां पे नहीं है तो उसको हम बोलते हैं एम्प्टी सेट, वॉइड सेट या फिर नल सेट. ठीक है. कितना भी हम आगे जाएंगे, कुछ और नया नया सीखेंगे, कुछ प्रैक्टिस वगैरह करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग की, कितना भी वो करेंगे हम, लेकिन बेसिक्स जो हमने पहले लेक्चर्स में सीखे हैं वो कहीं पे भी हमको भूलना नहीं है. ठीक है. तो ये सब याद रखते हैं और आगे चलते हैं. अब जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें क्या है? P यूनियन ऑफ Q इंटरसेक्शन R. नाउ थैंकफुली और फॉर्चुनेटली वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड Q इंटरसेक्शन R. तो वो हमारे पास यहीं पे है ही. ठीक है. जिसका एक ही एलिमेंट है 3. फाइन. अब नाउ वी वांट टू टेक यूनियन ऑफ दिस पर्टिकुलर एलिमेंट विथ P. P कहाँ पे है? P इज हियर. -10, -4. सो -10, -4 और 3 का अगर यूनियन लेना है तो क्या करेंगे? कंसिडर ऑल दिस एलिमेंट्स. सो इसलिए ये आएगा -10, -4 एंड 3.
ठीक है, अगर यहाँ पे एक भी एलिमेंट कॉमन होता तो उसको हम एक बार ही लिखते, उसको हम डबल काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये आएगा -10, -4 एंड 3। आई होप वी आर नॉट गोइंग टू फास्ट एट ऑल। बहुत बार किया अभी तक हमने इंटरसेक्शनल यूनियन। यू कैन रेफर अवर अर्लियर लेक्चर्स। अगर इसमें कुछ भी दिक्कत किसी को भी आ रही है तो दे आर वेरी मच अवेलेबल ऑन अवर यूट्यूब चैनल। ठीक है, अब देखो P इंटरसेक्शन Q यूनियन R। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड Q यूनियन R। ठीक है, चलो ये बहुत, now where we should focus, that only I'll write, then I'll only highlight. हाँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड Q यूनियन R। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं, वी विल यूज दिस स्पेस, Q यूनियन R इज इक्वल टू 3, 2, -20 और 3 तो एक बार हमने कंसिडर किया ही है। ठीक है, अब इसका इंटरसेक्शन हमको लेना है P से। अब P क्या है, -10 एंड -4। सो डू वी हैव एनी नंबर इन कॉमन? देखो P का इंटरसेक्शन लेना है Q यूनियन R से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा Q यूनियन R और ये है हमारा P। सो -10, -4 एंड 3 to -20, इसमें से कुछ भी कॉमन है क्या? डू दे हैव एनी कॉमन एलिमेंट्स? ठीक है, सो द नथिंग इज देयर, सो विल बी राइटिंग हियर दिस वन एज phi, दैट इज अ null set or void set or empty set। ठीक है, every of those students who have seen our earlier 4 lectures must be feeling confident about कि ये सब क्या चल रहा है अभी, ये प्रॉब्लम का ये आंसर कैसे आया करके। ठीक है, अगर आपको कोई भी दिक्कत है ऑब्वियसली कैन आस्क मी इन आवर ऑनगोइंग लेक्चर्स, अदरवाइज रेफर आवर earlier lectures on our YouTube channel. Fine? तो अगर यहाँ पे भी दिक्कत नहीं है किसी को भी, we can easily go ahead now. Consider example number 7 in our textbook. Right now we are going through our solved example वाला content ही। जब unsolved वाले examples आएंगे that time we need to focus much more than this। ठीक है, obviously I am going to solve the problems on screen, so miss we are going to solve the problems here, so need not worry। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 में, इफ A and B आर द सबसेट्स ऑफ X एंड क्लियरली X मीन्स यूनिवर्सल सेट ओवर हियर। ठीक है, एंड N of X, N मीन्स व्हाट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट X इज इक्वल टू 50, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A इज इक्वल टू 35, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B इज इक्वल टू 22 एंड number of elements in A dash intersection B dash is 3. 4 clues are given to us. ठीक है, and then we want to find 4 expressions for number of elements in A union B, A intersection B, A dash intersection B and A union B dash. So we need to find all of these number of elements only. ठीक है, the first problem that we are considering, जहाँ पे हमको एक्चुअल एलिमेंट्स दिए भी नहीं है और हमको उसकी जरूरत भी नहीं है। ठीक है, वी जस्ट वांट टू फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पर्टिकुलर सेट्स। क्लियरली वी नीड टू कंसिडर और वी नीड टू कंसिडर ओनली विद द कार्डिनलिटी ऑफ द सेट। ठीक है, लेट अस रिकलेक्ट व्हाट इज मेंट बाय कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ सेट। इट इज डिनोटेड बाय ऐसा जहाँ पे लिखा है ना NX, NA। हाँ, these things denote the cardinality of a particular set। ठीक है, so this we need to find out।
चलो, नाउ क्लियरली वी नीड टू हैव समथिंग. हाँ, अभी किसी को लगेगा क्या रे, शुड वी रिमेंबर ऑल दिस एक्सप्रेशन और व्हाट, ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन एक्स माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी डैश एंड ऑल. ठीक है, तो अगर आपको ऐसा लगता है तो वेरी बेर मिनिमम एक्सप्रेशन वी कैन ट्राई टू मार्क अप. अदरवाइज अगर आपको कुछ भी कॉन्फिडेंस नहीं है या यू आर नॉट मच श्योर अबाउट एनी ऑफ द थिंग्स, वी कैन टेक हेल्प ऑफ वेन डायग्राम एनी टाइम. ठीक है, वेन डायग्राम का हम आराम से हेल्प ले सकते हैं. कैसे लेंगे, क्या करेंगे यहाँ पे? अभी पहली चीज तो यह है कि दिया क्या है यहाँ पे. हाँ, एन एक्स दिया है, एन ए दिया है, बी दिया है. ठीक है, और ए डैश यूनियन बी डैश दिया है. अब यहाँ पे देखो, एक चीज यहाँ पे याद में रखनी है बाय डी मॉर्गन्स लॉ, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू ए यूनियन बी ब्रैकेट डैश, और जिसका मतलब है, हाँ इसका हम प्रीफिक्स एन भी कर सकते हैं. हाँ, ये भी आराम से कर सकते हैं. ठीक है, तो दिस मीन्स व्हाट, एन ऑफ एक्स माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी. कहाँ से आया ये? ए डैश इज इक्वल टू, हमने वो किया था ना, एन ऑफ ए डैश इज इक्वल टू 1 माइनस एन ए, बहुत पहले. यही तो डेफिनेशन है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट का. ठीक है, तो वही हम यूज करते हैं, तो हमको ये कहीं पे तो एक्सप्रेशन मिल जाता है. ठीक है, और भी हमको एक एक्सप्रेशन पक्का याद है जिसको हम बोलते हैं एडिशन थ्योरम, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. ठीक है, तो ऐसे जो बेर मिनिमम चीजें हैं वो याद रखते रखते थोड़ा सा ट्राई करते हैं ऐसे प्रॉब्लम्स सॉल्व करने का. अगर वो याद है तो शायद से आपको ये भी चीज़ समझ में आ जाएगी जो यहाँ पे इन्होंने इनिशिएट किया है. व्हाट दे हैव गिवन हियर, पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा क्या है, वी वांट टू फाइंड एन ऑफ ए यूनियन बी. तो दे हैव डायरेक्टली स्टार्टेड विद एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन एक्स. तो वो कैसे आया है वो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है. ठीक है, एन ऑफ एक्स माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी का डैश. ठीक है, वही हमने यहाँ पे लिखा है, देखो. ठीक है, तो क्लियरली वो हम यूज करेंगे एन एक्स माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी डैश. अब एन ऑफ ए यूनियन बी डैश इज इक्वल टू एन ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश. क्यों? द रीजन इज हियर, हियर इज द रीजन. ये हमने लिखा है ऑलरेडी यहाँ पे. ठीक है, यू कैन फोकस हियर, द रीजन लाइज इन दिस एक्सप्रेशन. फाइन. अब यहाँ पे क्या दिया है, एन एक्स इज गिवन हियर 50, तो वो लिखेंगे एन ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज ऑल्सो गिवन हियर एज 3. ठीक है, तो इट कम्स एज 47. सो 47 इज द वैल्यू फॉर एन ऑफ ए यूनियन बी. प्लीज वेरीफाई दिस. ये एक्सप्रेशन कैसे हैंडल किया है, ये कैसे आया आंसर, एवरीथिंग इज एक्सप्लेन्ड हियर. कुछ भी डाउट है आस्क मी. अनलेस एंड अनटिल द फर्स्ट एक्सप्रेशन कैसे आया है, हमने कैसे किया, जब तक ये क्लियर नहीं है, डोंट गो फॉर अवर नेक्स्ट सब क्वेश्चन, दैट इज सब क्वेश्चन नंबर 2, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. ठीक है, एवरीवन इज कन्विंस्ड कि एक्सप्रेशन ये क्यों लिया, ये एक्सप्रेशन कहाँ से आया, वैल्यूज यही सब्स्टिट्यूट क्यों किए हैं, और इसका आंसर 47 कैसे आया. अगर ये सबको एक्सेप्टेड है तो ही हम आगे चलते हैं. अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. तो क्लियरली नाउ वी हैव गॉट ऑल द वैल्यूज. नो, हमारे पास अभी ए यूनियन बी भी है, एन ए भी है और एन बी भी है. ठीक है, अब देखो हमारा बेसिक एडिशन थ्योरम सेज व्हाट, बेसिक एडिशन थ्योरम मैंने यहाँ पे जो लिखा है, इट सेज व्हाट, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी.
और यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा ये घुमा फिरा के लिखा है. सो दे हैव नॉट चेंज एनीथिंग एज अ एक्सप्रेशन एट ऑल. सिंपली ये साइड को जो है वो यहाँ पे था, ये जो साइड है इसका ये यहाँ पे आया है और ये यहाँ पे आया है. ठीक है. सो दैट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस इन द ओरिजिनल प्रॉपर्टी और द एक्सप्रेशन एट ऑल. ये ऐसा ही आएगा, ये ऐसा ही करेक्ट है. ठीक है. अब जिसका जरूरत है फाइंड आउट करने का उसको हमने खाली एलएचएस को ले लिया है. फाइन. सो दिस गिव्स अस द वैल्यू ऑफ एन ए. नाउ व्हाट इज एन ए? इट इज गिवन ओवर हियर. एन ए इज इक्वल टू 35, एन बी इज इक्वल टू 22. इट इज गिवन इन द क्वेश्चन. सो 35 and 22 they are written over here. N of A intersection B is 47. Fine. So 35 plus 22 makes it 57. 57 minus 47 makes it 10. Check at your end. How we got the answer as a 10? Check everyone. Yes, and for sure everyone is aware about the fact that for 11th and 12th standard, for any stream, no calcs is allowed. So even though now you have got mobile calcs with you, you are not going to use it at all. For standard 11 and 12, no mobile, no simple calcs is also used. Mobile calcs तो बहुत दूर की बात है. ठीक है. If this is done, then let us go for our third question. N of A dash intersection B. N of A dash intersection B. अब ये एक्सप्रेशन कहाँ से आया? दिस तो कितना याद रखेंगे एक्सप्रेशन, बिल्कुल इतना काम नहीं करना है मुझे, है ना. तो ये एक्सप्रेशन कहाँ से आया है पहले देख लेते हैं. फॉर दैट सेक वी विल टेक अ हेल्प ऑफ आवर वेन डायग्राम. वेन डायग्राम इज गोइंग टू हेल्प अस अ लॉट. वो अभी हमको बताएगा कि ये एक्सप्रेशन कहाँ से आया है. ये है ए, ये है बी. ठीक है. व्हाट वी नीड टू फाइंड ए डैश इंटरसेक्शन बी. अब ए डैश मीन्स व्हाट? ए के जो बाहर है वो सब. मैं उसको थोड़ा सा अलग कलर से शेड करती हूँ. ए से बाहर जो भी है वो आएगा ए डैश. ये पूरा ए डैश है और उसका इंटरसेक्शन किससे लेना है? बी से. ठीक है. तो उसमें और बी में जो भी कॉमन है वो कंसिडर करते हैं. इज दिस बेटर? तो बी में क्या है? ये चीज़ें हैं. ये वाला पार्ट पूरा बी में है. ठीक है. तो अभी ए डैश इंटरसेक्शन बी क्या आएगा? इंटरसेक्शन है तो कॉमन आएगा. कॉमन मीन्स व्हाट? दोनों के बीच जो कॉमन एरिया है. तो वो एरिया कौन सा आएगा वो दिखाते हैं अभी हम. वो आएगा ये वाला एरिया. ये जो यहाँ पे दोनों कलर दिख रहे हैं वो आएगा. ठीक है. तो अब नेचुरली ये एरिया हमको मिलेगा कैसे? ये एरिया मिलेगा कैसे हमसे? ये पूरा जो बी है उसमें से अगर हम ये निकाल देते हैं पार्ट तो वी नेचुरली आर लेफ्ट ओवर विद दिस मच ओनली. ठीक है. एंड दिस मच ओनली मीन्स व्हाट? इसलिए ये बनता है यहाँ पे कि एन ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पूरा जो एन बी है, ये हमारा बाहर वाला पूरा एन बी जो है वहाँ से हमने सब्ट्रैक्ट किया है ए डैश सॉरी ए इंटरसेक्शन बी मीन्स ये वाला एरिया. ये जो यहाँ पे जो कॉमन एरिया है वो हमने सब्ट्रैक्ट किया है. सो नो नीड टू रिमेंबर ऑलवेज एवरीथिंग. वी कैन बी स्मार्टर ऑल्सो. ठीक है. We can be smarter also. I'll draw a better diagram so that you can note it. ये सिर्फ explanation के लिए था तो it was little bit overwritten. ये है A, ये है B and A dash intersection भी हमारा आ रहा था ये पार्ट. ठीक है. दिस इज डिनोटिंग ए डैश इंटरसेक्शन बी. एंड हाउ इट इज रिकवर्ड? इट इज रिकवर्ड फ्रॉम ए पूरा एन बी मीन्स बी में से हमने सिर्फ ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट निकाला है तो बाकी बचा है जो भी वो है ए डैश इंटरसेक्शन बी. एंड वंस वी आर कन्विंस्ड विद दिस एक्सप्रेशन, वंस वी आर
कन्विंस्ड विद दिस एक्सप्रेशन, नेचुरली वी कैन से दैट यहाँ पे जो है वो एन बी का वैल्यू है 22, वी आर ऑलरेडी गिवन। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन भी हमने अभी अभी निकाला है 10, तो वो यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाता है 12 एज अ फाइनल आंसर फॉर ए डैश इंटरसेक्शन बी। वेरीफाई दिस। एक बार चेक करो इफ यू आर गेटिंग द आंसर, हाउ वी गॉट इट। इफ दिस इज क्लियर, इजीली वी विल गो फॉर आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज एन ऑफ ए यूनियन बी डैश। अगर आप वेन डायग्राम ट्राई करना चाहते हैं बिफोर आई टेल यू, डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट। I'll give you just a minute to try these things by Venn diagram. ठीक है, चलो ये पहले मिटा देते हैं। ए यूनियन बी डैश, ठीक है। अब ए का यूनियन लेना है, रुको पहले ए को शेड करते हैं। ये है पूरा ए, ये है पूरा सेट ए, उसका यूनियन लेना है बी डैश से। ओके, बी डैश मीन्स व्हाट, बी के जो बाहर वाला पार्ट है वो सब। ठीक है, सो दिस ऑरेंज कलर ओवर हियर डिनोट्स ए, और जो हमने यहाँ पे ग्रीन यूज किया है, दिस इज इंडिकेटिंग बी डैश। वी वांट टू टेक द यूनियन ऑफ दीज टू शेडेड एरियाज। तो क्या करना है, जो पूरा एक्स है यहाँ पे, आई विल चेंज कलर अगेन। जो पूरा एक्स है यहाँ पे, एक्स तो यहाँ पे है ना बाहर वाला यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो जो पूरा एक्स है उसमें से हमने अगर ये जो ब्लैंक एरिया हमको दिख रहा है ना, अगर वो हमने निकाल दिया तो वी आर गोइंग टू गेट द रिमेनिंग पार्ट। ठीक है, पूरा एरिया में से अगर हमने सिर्फ ये वाला जो पार्ट है, सिर्फ ये वाला जो पार्ट है, तो पूरे x में से अगर सिर्फ ये निकालते हैं हम, जो ब्लैंक यहाँ पे दिख रहा है, तो नेचुरली वी आर गेटिंग द शेडिंग फॉर ए यूनियन बी डैश। ठीक है, अब ये जो बाहर वाला पार्ट है वो क्या था, वो हमने यहीं पे तो निकाला था ए डैश इंटरसेक्शन बी करके। ठीक है, तो इसलिए वी आर देयर विद द एक्सप्रेशन दैट ए यूनियन बी डैश इज इक्वल टू एन एक्स माइनस ए डैश intersection B. nx we know it is equal to 50 और a dash intersection B अभी अभी हमने निकाला है 12 है, तो clearly we are going to go for 50 minus 12, that is equal to 38. We must be able to draft the as per our requirement या फिर draw the Venn diagram to go for the expression. ठीक है, बिफोर वी गो अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, विदाउट फेल गो फॉर ड्रॉइंग द वेन डायग्राम ओवर हियर। वेन डायग्राम अच्छे से ड्रॉ करो यहाँ पे, एंड उसके बाद शेडिंग भी कर दिखाओ वहाँ पे, एंड देन राइट द एक्सप्रेशन। ठीक है, सो आई विल जस्ट zoom out here, complete entire question। अगर कुछ भी बाकी हो किसी का भी, yes we can see 4 of the solutions over here now।
if you are not done with any of our earlier questions, all the 4 questions in sub questions in this given main question, तो आराम से लिख लो. And if this is done, we can easily go for our next question number 8. ठीक है. Confirmed that all the 4 sub questions are clear to everyone. So now we can easily go for our next main question over here. हाँ, very good. अब ये जो question number 8 यहाँ पे दिख रहा है, it is a word problem. Typically based on, ठीक है, पहले हम question देखते हैं, फिर बाद में बताती हूँ कि ये based किस पे होता है करके. Very importantly, if you see such word problem, you will not understand कि ये प्रॉब्लम सेट का है अगर आपका ऑब्जर्वेशन इतना प्रिसाइज नहीं है तो. ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन देते हैं, देखो अगर ये क्वेश्चन दिया है पेपर में, हमेशा ये सोचना है कि अगर ये क्वेश्चन मुझे पेपर में दिखता है तो हाउ विल आई सॉल्व इट, हाउ विल आई गेट के ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है. ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन दिया है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 जैसा है, या फिर अब तक जितने क्वेश्चन हमने अब तक सॉल्व किए हैं सभी क्वेश्चंस, वहाँ पे क्लियरली दिया था ना कि यूनियन निकालना है, सेट ए ऐसा है, बी वैसा है करके. तो ठीक है, तो वैसा कुछ भी यहाँ पे दिया नहीं है, फिर भी वी आर गोइंग टू गो हेड, क्योंकि वी नो दैट टिपिकली जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं प्रिसाइजली, ये क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन सेट. कैसे है ये पहचानना है, आई विल टेल यू, बट बिफोर दैट वी विल रीड दिस क्वेश्चन. ठीक है, सो क्वेश्चन में क्या दिया है, इन एन एग्जामिनेशन 40 स्टूडेंट्स फेल्ड इन फिजिक्स, 40 in chemistry, 35 in mathematics, 20 failed in mathematics and physics, 17 failed in physics and chemistry, 15 failed in mathematics and chemistry, and 5 in all the 3 subjects होगा वो. हाँ, and 3 in all the 3 subjects. If 350 students appeared for the examination, how many of them did not fail in any of the 3 subjects? ठीक है, सो जब ऐसा वर्ड प्रॉब्लम होता है तो पहला काम हमारा ये है कि रीड द क्वेश्चन केयरफुली. अब ये जो क्वेश्चन है वो सेट पे बेस क्यों है, बिकॉज सी हियर, यहाँ पे 3 एंटिटीज दी है, सब्जेक्ट्स ऑफ फिजिक्स, सब्जेक्ट ऑफ केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, और वहाँ पे एक ही क्राइटेरिया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड इन आइदर 1 सब्जेक्ट और 2 सब्जेक्ट्स और 3 सब्जेक्ट्स. और क्वेश्चन भी जो पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डिड नॉट फेल इन एनी ऑफ द सब्जेक्ट्स. तो क्वेश्चन भी जो पूछा है वो भी तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का ही पूछा है. ठीक है, तो इसलिए जहाँ पे काउंट ऑफ द स्टूडेंट्स आया है वहाँ पे, तो क्लियरली वी शुड अंडरस्टैंड हियर और वी शुड गेट इट दैट वी नीड टू मेक और वी नीड टू कंसिडर, वी नीड टू प्रिपेयर 3 सेट्स. सेट 1 आएगा सेट ऑफ द स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन फिजिक्स. फेल्ड इन फिजिक्स क्यों लिया, पास्ड इन क्यों नहीं लिया, क्योंकि जो भी हमको नंबर्स दिए हैं क्वेश्चन में, देखो यहाँ पे 40 स्टूडेंट्स फेल्ड इन फिजिक्स. सो पी का हम लेते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या फिर सेट ऑफ द स्टूडेंट्स फेल्ड इन फिजिक्स. तो अगर ये लाइन हम पढ़ते हैं यहाँ पे, तो एन ऑफ पी आएगा 40. अगर हमने सी को बोला सेट ऑफ द स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन केमिस्ट्री, तो एनसी आएगा 40. देखो ये इसकी वजह से
NC आएगा 40, इसकी वजह से NM आएगा कितना है 35, ठीक है। नाउ नेक्स्ट लाइन 20 फेल्ड इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। मैथ्स में भी वो फेल हुए हैं ये सब बच्चे, और फिजिक्स में भी फेल हुए हैं, दोनों में फेल हुए हैं। तो यूनियन है या इंटरसेक्शन है, दोनों में भी फेल है, ठीक है। तो क्लियरली दिस इंडिकेट्स दैट n ऑफ m intersection P is equal to 20. 17 in physics and chemistry, ठीक है। तो 17 in physics and chemistry, 15 in maths and chemistry, और क्या है 5 in all the 3 subjects। तो ये क्या आएगा फिर, फिजिक्स, केमिस्ट्री एज वेल एज मैथ्स, तीनों में वो गए, इतने स्टूडेंट्स गए हैं, 5 स्टूडेंट्स आर फेल्ड, ठीक है। तो पहले हमने क्या किया है, वर्ड प्रॉब्लम को कन्वर्ट किया है, जो एक्सप्रेशन हमारे लिए कंफर्टेबल है उसको हमने पहले कन्वर्ट किया है वहां पे, ठीक है। तो कन्वर्ट करते क्या हो गया यहाँ पे, नाउ दीज आर आवर 3 सेट P as number of student, set P as set of students who have failed in physics, C as a set of students who have failed in chemistry, and M as a set of students who have failed in मैथमेटिक्स। जैसे हमने ये स्पेसिफाई किया, देखो यहाँ पे हमने स्पेसिफाई किया है ये सब, P क्या है, C क्या है और M क्या है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है तो उसके बाद गिवन क्या आएगा, ये सब गिवन है जो हमने यहाँ पे लिखा है ना, ये जो लिखा है ये वाला पार्ट वो यहाँ पे लिखा है, ठीक है। NP इज 40, NC इज 40, वो भी हमने लिखा था, NM 35, M इंटरसेक्शन P 20, P इंटरसेक्शन C 70, M इंटरसेक्शन C 15 और M P C तीनों का इंटरसेक्शन है 5। ये सब हमने पहले ही लिखा था। ये 350 कहाँ से आ गया, बिकॉज एट द एंड दे हैव गिवन इफ 350 स्टूडेंट्स अपीयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन, मीन्स जिसमें से कुछ पास भी है कुछ फेल भी है, ठीक है। तो क्लियरली दिस जो टोटल यूनिवर्सल सेट है उसमें NX में कितने स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे 350, ठीक है। इज इट ओके, यस। नाउ फोकस हियर। अब जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे हैं, जो भी क्वेश्चन उन्होंने यहाँ पे एक ही क्वेश्चन पूछा है, हाउ मेनी ऑफ देम डिड नॉट फेल इन एनी ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स, हाउ मेनी ऑफ देम डिड नॉट फेल। तो उसका मतलब क्या है, दैट वी नीड टू फाइंड जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उसमें से ऐसे स्टूडेंट सब्ट्रैक्ट करने हैं जो किसी में भी फेल नहीं हुए हैं। तो वो आएगा पूरा का पूरा, हमारा जो वेन डायग्राम है वो पहले निकालना पड़ेगा। उसके लिए एक एडिशन थ्योरम भी हमने जब व्हेन वी वर स्टडीइंग एडिशन थ्योरम, सो दैट टाइम ओनली आई टोल्ड यू कि ये जो 2 सेट वाला एडिशन थ्योरम है वो ठीक है, that n of A union B is equal to NA plus NB minus n of A intersection B। और that उसी के नीचे हमारे टेक्स्ट बुक में ही नीचे कुछ और भी एक लिस्ट ऑफ फॉर्मूले हैं, उसमें 3 वाला भी है। तो यहाँ पे MPC1 लिखा है, तो वो जो बुक में है प्रॉपरली वो फॉर्मूला आप जो फाइंड करोगे ऑन अवर अर्लियर पेजेस, वो एडिशन थ्योरम के नीचे एक फॉर्मूला है दैट n of A union B union C is equal to NA, NA plus NB minus N of A intersection B। और that उसी के नीचे हमारे टेक्स्ट बुक में ही नीचे कुछ और भी एक लिस्ट ऑफ फॉर्मूले हैं, उसमें 3 वाला भी है। तो यहाँ पे MPC1 लिखा है, तो वो जो बुक में है प्रॉपरली वो फॉर्मूला आप जो फाइंड करोगे अर्लियर पेजेस, वो एडिशन थ्योरम के नीचे एक फॉर्मूला है दैट n of A union B union C is equal to NA
प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ A union A intersection B minus n of B intersection C minus n of A intersection C. ये पूरा फॉर्मूला यू विल बी एबल टू फाइंड देयर. आई थिंक पेज नंबर कुछ तो होगा 8, 9, 10 ऐसा कुछ तो होगा हमारे टेक्स्ट बुक में. अगर आपको दिखाना ही है तो हम एक बार चेक करते हैं. हम please do it. Check the earlier pages. ठीक है, some of you could get it on in the textbook, and they could verify also the formula which is given there below the addition theorem for 2 set. अब ये जो प्रॉब्लम है ये टिपिकल प्रॉब्लम है सेट का, उसको हम आराम से सॉल्व करते हैं. Once we are aware about this particular expression that n of A union B union C is equal to Na plus Nb plus Nc plus n of A intersection B intersection C minus n of A intersection B minus B intersection C minus A intersection C. ठीक है, अब ये जो एक्सप्रेशन अगर हमको फॉर श्योर हमने वेरीफाई कर लिया है हमारे टेक्स्ट बुक में हमने जब लिखा था तो so now we can easily go ahead with putting the values only which we have found over here, जो हमने यहाँ पे लिख के लिए थे. ठीक है, तो NP क्या है, हाँ अभी खाली ABC के इंस्टेड ऑफ ABC इट इज PCM. ठीक है, तो दैट विल बी 40 प्लस ये जो है 40 प्लस 40 प्लस 35. देखो यहाँ पे 40 प्लस 40 प्लस 35, उसके बाद प्लस आएगा ये 5 प्लस ये आया 5 और माइनस ये जो है M इंटरसेक्शन P PC और
M of M intersection C. तो 20, 17 and 15. So minus 20 minus 17 minus 15. ठीक है. So please check without using any of the calci if you have with you, that if 35 plus 40 plus 40 plus 5, I think it should make 120, और उसमें से माइनस अगर हम करते हैं 20, 17 और 15, तो आर वी एबल टू गेट 68. ठीक है. अब 65, 68 जो नंबर आया है हमारा, वो क्या है, एमपीसी का इंटरसेक्शन है. देखो मैं यहाँ पे आपको दिस प्रॉब्लम स्पेसिफिकली आई ऑलवेज एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एक्सप्रेशन एज वेल एज द वेन डायग्राम. वेन डायग्राम से समझना बहुत सिंपल है, तो पहले हम एक्सप्रेशन से समझ लेते हैं. देखो यहाँ पे अगर ये P है, ये क्या है C है, और ये M है. ठीक है. सो तीनों का यूनियन है यहाँ पे. अगर तीनों का यूनियन हमने यहाँ पे निकाला है 68, तो यूनियन क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव फेल्ड इन आइदर फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ्स. तीनों में से या तो एक में गए हैं वो स्टूडेंट्स, या फिर दो सब्जेक्ट्स में गए, या फिर तीनों में गए हैं. ठीक है. क्वेश्चन क्या है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वी नीड टू फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डिड नॉट फेल इन एनी ऑफ द सब्जेक्ट्स. तो इसका मतलब क्या है, ये जो पूरा बाहर का रीजन है वहां पे हमको फोकस करना है. ये जो बाहर वाला चीज है, ये आई एम सॉरी, ये जो बाहर का है, दिस वी नीड टू फाइंड. और वो कैसे आएगा, पूरा ये रीजन आएगा बाय यूजिंग द एक्सप्रेशन nx माइनस n ऑफ p यूनियन c यूनियन m. और नेचुरली nx तो दिया है 350, 68 हमने निकाला है अभी p यूनियन c यूनियन m. तो क्लियरली दिस बिकम्स 350 माइनस 68, विच गिव्स अस द आंसर 282. ठीक है. सो 350 माइनस 68 मेक्स इट 282. आई विल जूम आउट द सॉल्यूशन, वेरीफाई कर लो एक बार. एंटायर सॉल्यूशन इन फ्रंट ऑफ यू. अगर यहाँ पे दो दो फॉर्मूले देख के हैरानी हो गए आपको, तो एक ही मैं अभी रख देती हूँ यहाँ पे. ठीक है. Now this solution we could get with the help of expression handling only. यहाँ पे मैंने आपको वेन डायग्राम नो डाउट दिखाया है, लेकिन वो वेन डायग्राम किसके लिए था, सिर्फ एंड वाला सॉल्यूशन देखने के लिए कि कौन सा रीजन हमको फाइंड आउट करना है. वो शेडिंग इसलिए मैंने दिखाया था. अब यही सब चीजें विदाउट दिस, actually we must do expression wise on priority because we need to be mathematical, means more mathematical. So expression handling वाला ज़्यादा अच्छा होगा. लेकिन ये जो यहाँ पे डायग्राम दिए ना, दिस इज ऑल्सो वेरी मच सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. ठीक है. क्यों ये ज़्यादा अच्छी क्यों है, बिकॉज अगर हम ये विजुअलाइज मीन्स अगर हम देखते हैं वो डायग्राम, तो जल्दी से एक्सेप्टेंस हो जाता है. ठीक है. तो ये यहाँ से अगर सिर्फ एक्सप्रेशन से भी कैसे हम काम चला सकते हैं, सिर्फ डायग्राम से भी कैसे हम काम चला सकते हैं, वो पहले देखते हैं. I want you to see expression as well as the diagram. ठीक. Yes. Now what is given? Given is nx equal to 350. That's okay.
रुको, यस, NP इज 40, NP इज 40, उसका मतलब क्या है, ये जो पूरा P है, ये जो पूरा राउंड है वो 40 है, ठीक है। NC इज 60, ये जो पूरा C है ये है 60, आई एम सॉरी, NC इज ऑल्सो 40, ये भी पूरा 40 ही है, और NM कितना है 35। अब क्या M और P का इंटरसेक्शन कितना है 20, मीन्स जो ये एरिया टोटल है ये है 20, P और C का है 70, P और C का जो कॉमन एरिया है ये है 17, M और C का कॉमन रीजन जो है तो ये वाला, ये है 15, और जो तीनों में भी कॉमन है वो है 5। तो वी विल स्टार्ट विद दिस, हम शुरुआत यहाँ से करेंगे डायग्राम ड्रॉ करते वक्त, कि तीनों में जो कॉमन है वो है 5। अब यहाँ पे हमने जो 5 लिख लिया, तो फिर वी नो दैट ये जो P और M का है ये 20 है, तो ये पूरा जब 20 है तो ये बाहर का आ जाएगा 15। ऐसा करके हम डायग्राम में पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। अब ये सब करने से क्या होगा, क्या हासिल होगा, दैट नाउ व्हेन वी, जब ऐसा करते, चलो और एक तुमको मैं एक्सप्रेशन बता देती हूँ कि अगर P ऑफ N ऑफ P इंटरसेक्शन C 17, ये दोनों का 17 है, लेकिन उसमें से 5 तो यहाँ पे प्रेजेंट है तो यहाँ पे आएगा 12, ये 15 है तो ये, और 5 ऑलरेडी यहाँ पे है तो ये आएगा, यहाँ पे आएगा 10, ठीक है। तो ये सब जब हम करते हैं तो नेचुरली वी कैन गेट ये यहाँ पे जो है ना 8, 5, 13 वगैरह, ये भी हमको नंबर मिल जाएंगे। कैसे मिल जाएंगे, बिकॉज वी नो NP इज इक्वल टू 40 टोटल, सो 15 प्लस 5, 5 इज 20, 20 प्लस 12 इज 32, प्लस 12 मीन्स 32, सो अगर हम 40 में से 32 सपरेट करते हैं तो हमको ये मिल जाता है 8, ठीक है। ऐसा करते करते हमने हर एक का नंबर निकाला है। अब ये वेन डायग्राम निकालना ज़्यादा एडवाइजेबल या फिर अंडरस्टैंडिंग वाइज बेटर क्यों होता है, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है ना कि कोई भी क्वेश्चन अगर ट्विस्टेड भी डालते हैं, अगर क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा होता है कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर फेल्ड इन ओनली वन सब्जेक्ट, और हु आर नॉट फेल्ड, हु हैव नॉट फेल्ड इन एनी वन ऑफ द सब्जेक्ट्स वगैरह, तो वी कैन पिक आउट एनी वन ऑफ दीज नंबर्स। अगर यहाँ पे अगर क्वेश्चन होता कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who have failed only in physics and not in chemistry or maths, तो हम इजीली ये डायग्राम देख के हम उसको बता सकते थे कि अरे हाँ सिर्फ फिजिक्स में सिर्फ 8 ही फेल हुए हैं करके आउट ऑफ 40, ठीक है। 40 में से 5 तो ऐसे हैं जो तीनों में गए हैं, 12 तो ऐसे हैं जो फिजिक्स और मैथ्स में गए हैं, और सॉरी फिजिक्स और केमिस्ट्री में गए हैं, और 15 तो ऐसे हैं जो फिजिक्स और मैथ्स में गए हैं, और सिर्फ 8 लोग ही ऐसे हैं जो सिर्फ फिजिक्स में फेल हो चुके हैं। दिस वी कैन इजीली विजुअलाइज विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम इफ यू ड्रॉ दिस वे, ठीक है। तो या तो आप ये प्रॉब्लम ऐसे जो सम्स आते हैं, वर्ड वाले प्रॉब्लम्स आते हैं, या तो आप क्लियरली ये एक्सप्रेशन से जैसे हमने पहले सॉल्व किया था, ये देखो ये वाला चीज़, तो अगर या तो हम ऐसे कर सकते हैं या फिर ये भी, मैं तो एडवाइस करूँगी कि आप वेन डायग्राम भी ड्रॉ करो, आपके पास रहने दो, पता नहीं कौन सी क्वेश्चन पे कैसे पूछेंगे, और उसके बाद एक्सप्रेशन हैंडलिंग भी अच्छे से करो। एग्जाम में पता नहीं आप कहाँ पे कॉन्फिडेंटली एक्सप्लेन कर सकते हैं किस टाइप से, सो प्रैक्टिस तो दोनों का करो, इज माय एडवाइस टू यू, ठीक है। सो बाय बोथ ऑफ द वेज वी कुड गेट द आंसर एज 282। हाउ कम वी कुड गेट द आंसर एज 282, बिकॉज इस यहाँ पे भी तो हमने क्या करना है, ये पूरा P यूनियन C यूनियन M कैसे आएगा, 8 प्लस 15 प्लस 5 प्लस 12 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 23, तो सॉरी प्लस 13, तो ये अगर हम पूरा का पूरा ऐड भी करते हैं तो दिस नंबर विल कम एज 68, आई एम श्योर, ठीक है। और एंड में लॉजिक तो यही लगाना है कि 350 माइनस 68 मेक्स इट 282 एज अ फाइनल आंसर, फाइन। सो अच्छे से नोट करना है ये वाला पर्टिकुलर प्रॉब्लम। This is a very typical question on set, typical word problem on sets.
ठीक है, एनी डाउट लेट मी नो. एंटायर सॉल्यूशन जस्ट गो थ्रू इट. ये डायग्राम भी अच्छे से ड्रॉ कर दो, ये वाला. I'll rub the unnecessary things. Now unnecessary I should say. ये अच्छे से नोट डाउन कर लो, और उसके बाद ये भी अच्छे से लिख. आप ये तो लिखा ही होगा आपने बाय नाउ फॉर श्योर. ये जब सब समझ में आ गए हमारे, सो नाउ वी आर डन विद दिस फर्स्ट एवर वर्ड प्रॉब्लम ऑफ set which is based on, now I can say that this was based on addition theorem, which is again having some expressions on cardinality of the sets involved over there, 2 sets or 3 sets. ठीक है. So now students, it is a time to start with our current lecture, that is lecture number 5. We have seen here again some solved problems today, and in our next lecture we are going to continue with our next content, some solved problems and some new concept. So for now we will take a break. See you in our next lecture, that is lecture number 6.